often wonder how introducing disadvantaged children to music or theatre can convince them to stay in school and build a better future. 6, 7, 8, 1. You have to realize that for these children, having a career and being successful are far-fetched dreams. 3, 4. These children don't think they can afford to dream. So it's not good enough to tell them that they have a bright future or something great lies ahead. You have to really show them. These programs do far more than words can. We started an arts program with these children because we felt that that could become an avenue for the children to actually build their confidence, to be able to perform, give them a platform to be able to express their creativity, express their thoughts. In fact, very often this is the first time the children ever express themselves. This is the first time when they actually discover who they are, what they are. And that's really what the arts can do for them. Having experienced the arts, having discovered themselves, they now have the courage to dream. They have ambitions, they want to stay in school, and the statistics are overwhelming. During the pandemic, we've all been living different lives. But while some students have had access to one or more devices to make their online learning possible, there are some who aren't able to afford this, and each of us are equally deserving. To me, bridging the gap means equal opportunities. And while I know this isn't an easy task to achieve, I believe we all should do our part in moving towards bridging the gap. Having seen online productions and plays put up by the students at SPF, I've noticed how talented and driven to learn they are. Online learning for them has been especially hard due to a lack of devices or lack of internet connectivity. However, I don't think their learning should be compromised because of this. I hope through this campaign and with help from all of you, we'll be able to give them a better access to an online method of learning and move towards bridging the gap. जैसे स्कूल में टीचर्स इम्पोर्टेंट है, वैसे ही लॉकडाउन में फ़ोन और इंटरनेट इम्पोर्टेंट है, उसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। जब तक पापा घर पे थे, मैं पापा का फ़ोन यूज़ करती थी, पर जब उनकी दूध की दुकान खुल गई तो पापा अपने ऑफिस जाने लगे, पर फिर मेरे पास फ़ोन नहीं रहा। फिर मैंने बगल वाली आंटी का फ़ोन मांगा, उन्होंने दिया मुझे, पर उनकी बच्चों की क्लासेस होती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था मांगना बार बार। मैं बहुत परेशान होती और एग्जाम्स भी फ़ोन पे ही होते थे और फ़ोन के बिना कुछ नहीं हो सकता था। फिर पापा को सलाम बॉम्बे से फ़ोन आया कि हम बच्चों को टैब दे दें, तो फिर हम गए और लेके आए टैब। उसमें फ्री का नेटवर्क, इंटरनेट सब मिलने लगा। अभी डांस क्लास और पढ़ाई उसमें चालू हो गई। फिर मैंने अपनी सलाम बॉम्बे की डांस क्लास और पढ़ाई की उसमें अच्छे से, और जो पहले नहीं हो पा रहा था वो
किधर किधर जा रहे ला लॉकडाउन चल रहा है बिना मतलब का बाहर जाना मना है बा लॉकडाउन चल रहा है बा हाँ ये लॉकडाउन चल रहा है। घर में रहेगा बेटा रहेगा महफूज, बाहर जाएगा बेटा उड़ जाएगा फ्यूज। इधर उधर झूमत कोरोना साथ लाएगा, अपने साथ दूसरों को भी मरवाएगा। सुन 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 जरा बाला, स्कूल कॉलेज सब को लग गया है ताला। कोरोना की बीमारों की बढ़ रही है माला, चारों ओर फैला है बस डर का बोलबाला। गली से दिल्ली तक सब है परेशान, कोरोना से जीतना नहीं है आसान। इसीलिए कहता हूँ दे दे खुद को टास, सैनिटाइजर लगा ले बेटा पहन पहले मास्क। दूर रहो ना आसपास, जान सबकी अनमोल है एकदम खास। इसीलिए कहता हूँ किधर जा रेला है, बाहर जाना मना है, लॉकडाउन चल रेला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, लॉकडाउन चल रेला है 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 भाई। कौन है आई कुछ नहीं, बर्तन गिर गए। इतने सारे बर्तन इतने छोटे से स्टैंड में जगह के लिए लड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे ना। आई इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब मैं गहरे नींद में होता हूँ तब ये नीचे गिरते हैं और मैं घबरा कर रुक जाता हूँ। अच्छा हुआ, नहीं तो दिन भर सोता ही रहता। क्या रे, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, सो रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? मैं भी सो रहा हूँ और नहीं भी। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ना दिन का पता चलता है ना रात का, ना डे ना तारीख, बस तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख चली जा रही है। सच यार, जब लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हुआ तो ऐसा लगा कि ये अब मजा ही मजा, ना स्कूल जाना ना पढ़ाई, बस आराम ही आराम, मजा ही मजा। लेकिन ये मजा अब सजा बन गई है यार, घर बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। हाँ यार, टाइम ही टाइम है, ये टाइम खत्म ही नहीं होता, कुछ ना कुछ तो करता रहता हूँ। और अगर फिर भी बोर हो जाऊँ तो तू है ना, तुझे फोन करके जगाता हूँ। सच यार, वो स्कूल जाना, स्कूल जाने की तैयारी करना, मस्ती करना, टिफिन शेयर करना और बागमारी सर की डांट खाना। चेतन खड़ा हो जा, कान पकड़। दिन भर बस खाता रहता है और गाना गाता रहता है। पढ़ाई पे नाम पे, हाँ भाई पढ़ाई पे नाम पे फुस। सच यार, अच्छा था वो सब, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बस कर पगले, बस कर बस कर। अब रुलाएगा क्या है? क्या भाई, डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है? टीवी ज्यादा देखता है क्या? नहीं रे, वो बोर होता हूँ तो न्यूज चैनल के डिबेट शो देखता हूँ। वहाँ पे सब प्री प्लानिंग कॉमेडी करते हैं। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आसमान से बारिश की बूंदें हमारी धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। आप चुप रहिए। वाह भाई वाह। यार चेतन, बाकी सब लोग क्या कर रहे होंगे रे? टाइम पास। ओए चेतन, चेतन, अबे सो गया क्या? ओए चेतन, ओए विक्रली के कुंभकर्ण, बाय बाय। ईशा। अरे ईशा डर मत, मैं अंकिता। अंकिता, ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? अरे वो मेकअप करते हुए गलती से। अब ठीक है? उधर नाक पे। एक बात बता, ये मेकअप शेकअप करके जा कहाँ रही है? बाहर तो सब बंद है ना। अरे कहाँ जाऊँ, दिन भर बोर होती हूँ तो सुबह है, दोपहर और शाम को घर में ही अलग अलग कपड़े पहनकर आईने के सामने बैठती हूँ, मेकअप करती हूँ,
फिर आईने में देखती हूँ, घर में ही घूमती हूँ और फिर जोर से बोलती हूँ कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। हाँ यार, कब खत्म होगा ये लॉकडाउन? तुम तो हर रोज मेकअप शेकअप करती हो और मैं हर रोज घर के सारे काम करती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना और कभी कभी तो खाना बनाना। एक बात बताऊँ? हाँ बोलना। मम्मी तो इस बार बहुत खुश है मुझ पर। कहती है ईशा मेरी लाडली बेटी, कितनी होशियार है मेरी ईशा। मम्मी को क्या पता, दिन भर बोर हो जाती हूँ इसलिए काम करती हूँ। इन्हें बस हो गया यार, कुछ तो नया शुरू होना मांगता है। हाँ ना यार, कुछ नया शुरू होना मांगता है। ए रुक, आदर्श का कॉल आ रहा है, मैं उसको मर्ज करती हूँ। नारायण नारायण, शुरू हो गया, कुछ अलग शुरू हो गया। नारायण नारायण, बोरिंग टाइम खत्म, टाइम पास करने की नहीं चिंता, अब सबको खुश होना बनता। नारायण नारायण। अरे क्या हो गया शुरू, क्या हो गया? शुरू हो गया, अपना पढ़ना शुरू हो गया। पढ़ना शुरू हो गया? कैसे भला? नारायण ऑनलाइन, कल से अपनी ड्रामा क्लास शुरू हो रही है। अपने अपने मोबाइल रिचार्ज करके रखना, जूम ऐप डाउनलोड करके रखना, और हाँ व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाए हैं, उस पर डिटेल जरूर चेक करना। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं। नारायण चल बाय, मिलते। बाय, चल बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? सर। हाँ सिद्धेश। सब म्यूट पे है सर। अरे सिद्धेश, तो सब म्यूट है तो सबको अनम्यूट करना। ओके सर, कर दिया। हाँ, गुड मॉर्निंग। अब ये कौन बोला? एकदम चुप, मुंह से आवाज एकदम चुप, एकदम साइलेंस, चुप। अरे कौन क्या बोल रहा है, कुछ पता चलने दो। अरे कम से कम वीडियो तो ऑन करो। दिखे। गुड मॉर्निंग। अरे मुझसे बात करो, आपस में क्यों बात कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा है। थैंक यू सर, अपनी क्लास म्यूट करो सिद्धेश, सबको म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट। हाँ, साइलेंस। देख भाई सिद्धेश, अब मैं जिसका जिसका नाम लूंगा उसको अनम्यूट करके हाईलाइट करना। हाँ, बाकी सबको म्यूट करना, ठीक है? तो बच्चों, अब सब बहुत खुश होंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे से ये वर्चुअल मिल रहे हैं। तो बिना शोर किए हम एक से एक बात करेंगे, बाकी सब म्यूट। सबसे पहले अंकिता। हेलो अंकिता। हाय सर। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर थैंक यू वेरी मच, आपने क्लास शुरू किया, हम तो परेशान हो गए थे। अरे उसमें थैंक यू की क्या बात है? हाँ, अब से परेशानी बंद और पढ़ना शुरू। ओके सर, थैंक यू। आगे कौन है? हाँ, आदर्श। अरे इनको किसने अनम्यूट किया? सिद्धेश, सबको म्यूट करने के लिए बोला था ना। म्यूट एकदम सारे बच्चे चुप बैठो, एकदम साइलेंट। म्यूट करो, म्यूट। अरे आदर्श, ये तुम्हारी जगह बकरी क्यों दिखाई दे रही है? बकरी दिखाई दे रही है? मैं नहीं दिखाई दे रही सर। अरे बकरी दिख रही है। अच्छा ऐसा। हेलो, अभी दिखाई दे रहा हूँ? अभी हाँ, अब दिखे। हाँ सर, वो क्या है ना सर, मैं अपने गांव आया हूँ और यहाँ घर में रेंज ही नहीं है, इसलिए बाहर पेड़ के नीचे बैठा हूँ सर। क्या बात है? कोरोना से लड़ाई, पेड़ के नीचे पढ़ाई। हाँ? थैंक यू। बस ऐसे ही रहना, और हाँ रेगुलर आना है। आगे कौन है? उदित।
और उदित, क्या हाल है? हाल क्या है? उदित, हाल क्या है? आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, उदित उदित, मैंने पूछा हाल क्या है? हाँ हाँ, हाल क्या है? उदित, मैं दिख रहा हूं, दिख रहा हूं। अब आपके स्क्रीन पे एक माइक का आइकॉन होगा, उसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करो, वो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, क्लिक करो। हाँ 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 सर, आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, लेकिन शोर बहुत हो रहा है। हाँ सर, मेरा एयरफोन खराब हो गया है और मेरा घर रास्ते के बाजू में है। घर के बाजू में छोटी छोटी दुकानें हैं सर। अंदर काम चल रहा है इसलिए बहुत शोर हो रहा है सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 4 बजे तक काम चालू है इसलिए म्यूट पर हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक है, हम क्लास का टाइम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तुम परेशान मत होना। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, और रेगुलर आना है। हाँ सर। अब कौन है? हाँ, यशिका। हेलो यशिका। हाय सर। हाय यशिका, ये तुम्हारे पीछे रिया है क्या? हाँ सर, हाँ। अरे, वो तुम्हारे घर में कैसे? सर वो क्या था ना कि रिया के पास मोबाइल नहीं है। घर में एक मोबाइल है पर वो सादा वाला है। इसलिए मैंने बोला तू मेरे घर आ जा, साथ में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा किया यशिका, बहुत अच्छा। और रिया, तुम भी परेशान मत होना। हाँ, अरे यशिका जैसी दोस्त हो तो परेशानी क्यों? यस सर, मैं यशिका के बाजू वाले घर में रहती हूँ। अब जब भी क्लास होगा मैं अटेंड करूंगी। बहुत खूब, ऐसे ही रहना और ऐसे ही सोचना। हम सब साथ साथ रहेंगे, साथ साथ मजे करेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी। हाँ यस सर। ये बच्चे तो लगता है चिल्ला चिल्ला के जान ही ले लेंगे। अब साक्षी को अनम्यूट करो। हाय सर। हेलो साक्षी। हाय। हाँ साक्षी, ये तुम्हारे पीछे कतार क्यों लगी है? अरे ये सर, वो क्या है ना, हमारे घर में एंड्रॉइड वाली एक ही जान है। क्या एंड्रॉइड वाली जान? अरे सर, मोबाइल। हमारे घर में एंड्रॉइड वाला एक ही मोबाइल है, इसीलिए ये बड़ी डिमांड में अच्छा। है। हर दिन इसके लिए लाइन लगती है, लाइन। सबसे पहले तो मेरा क्लास, बाद में छोटे भाई का, और उसके बाद बड़ी बहन का, और सबसे लास्ट हमारी मम्मी। वाह वाह वाह, एक जान के पीछे 4 लोग। अच्छा है, एडजस्टमेंट अच्छा है। लेकिन अब जो आपके पीछे खड़े हैं, कृपया उनसे नम्र विनंती है कि ये क्लास खत्म होने तक आप कतार से हट जाइए। हाँ शुक्रिया। अब आगे कौन है? स्नेहा। हेलो स्नेहा। हाय। कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। बट मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। कि हमारी ये क्लास ऑन टाइम शुरू और ऑन टाइम खत्म होगी ना? लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली सर, मेरे पास भी मोबाइल नहीं है, बट अच्छे नेबर्स हैं। मेरी बाजू वाली आंटी है ना, उन्होंने कहा तुम्हारी जब भी क्लास हो तो तुम मेरा मोबाइल यूज कर लेना और जब खत्म हो जाए तो वापस दे देना। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। आप सभी बच्चों को मेरा सलाम है। चलिए, आज इसी मौके पे हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ना हम दुखी होंगे, ना हम टेंशन लेंगे। सदा एक साथ रहेंगे, एक साथ मस्ती करेंगे, एक साथ सीखेंगे, हंसेंगे और बस हंसते ही रहेंगे। हाँ, तो बोलो है हो। डाम डी डाम डी डाम डी डाम डी डाम डी डाम डी डाम। क्या
क्या मजाल है वक्त की जब साथ साथ है हम, क्या मजाल है वक्त की जब साथ साथ है हम। ऊंची उड़ान भर लेंगे, ऊंची उड़ान भर लेंगे, है पंखों में उतना दम, है पंखों में उतना दम। हर बुराई के बाद चलकर आती है अच्छाई, कोशिशों के बाद जीत है यही तो है सच्चाई। हर बुराई के बाद चलकर आती है अच्छाई, कोशिशों के बाद जीत है यही तो है सच्चाई। चलो जिंदगी का ये पाठ पढ़ लें भूल के सारे गम, चलो जिंदगी का ये पाठ पढ़ लें भूल के सारे गम। ऊंची उड़ान भर लेंगे, ऊंची उड़ान भर लेंगे, है पंखों में उतना दम, है पंखों में उतना दम। क्या मजाल है वक्त की जब साथ साथ है हम, क्या मजाल है वक्त की जब साथ साथ है हम। ऊंची उड़ान भर लेंगे, ऊंची उड़ान भर लेंगे, है पंखों में उतना दम, है पंखों में उतना दम, है पंखों में उतना दम। तो बच्चों आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। सब लोग याद करो कि पिछले 8 महीने में हमने क्या क्या सीखा। वॉइस एंड स्पीच, कैरेक्टराइजेशंस, एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, स्पॉन्टिनिटी, सब याद करो, क्योंकि आज हमें कुछ ना कुछ बनना है। निर्जीव या सजीव कुछ भी, लेकिन बनना है और बिना रुके एक के बाद एक परफॉर्मेंस देना है। और सबसे आखिर में मैं भी परफॉर्मेंस दूंगा। देखते हैं क्या कहानी बनती है। लेट्स डू इट देन। ऑल द बेस्ट। वैसे लॉकडाउन थोड़ा अच्छा गया, थोड़ा झूठा मगर ज्यादा सच्चा गया। सारे भ्रम टूट गए, बुरी आदतों से छूट गए, कुछ अच्छा हो जाए इसलिए एक साथ सब जुड़ गए। हमने तो लॉकडाउन तोड़ा नहीं, हाँ मगर उसे आसानी से छोड़ा भी नहीं। किसी ने नाटक सीखा, किसी ने सीखा डांस, किसी ने संगीत, तो किसी ने सीखा ड्राइंग। सब कुछ था बन, लेकिन हमारा सीखना ऑनगोइंग, समझे? मुश्किलों का सेलिब्रेशन करके मुस्कुराहट से आगे ही आगे बढ़ जाते हैं हम। कुछ खोना कुछ पाना, यही है जिंदगी, जिंदगी को सलाम कर जाते हैं हम। परेशान हो गया हूं, परेशान। हाँ, क्या करूं? एक पल की फुर्सत नहीं मिलती मुझे। बस चलता रहता हूं। बार बार इनकमिंग कॉल, बार बार आउटगोइंग कॉल। ये लोग कितना बोलते हैं यार, है? बोलना खत्म तो व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और गूगल पे न जाने कितनी साइट्स पे जाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। इतनी नन्ही सी जान में, लेकिन जरा फुर्सत नहीं मिलती मुझे। कुछ नहीं तो फोटो निकालेंगे, वीडियो ले लेंगे, और अगर थक जाओ, बंद होने को आओ, तो पीछे से पिन डालकर चार्जिंग पे लगाया जाता है। परेशान हो गया हूं मैं, परेशान। लेकिन हां, मैं खुश भी हूं कि सुख और दुख में एक सहारा हूं, ज्ञान देने और लेने का माध्यम हूं, एक दूसरे से बात कराने का जरिया हूं। हां, मैं खुश भी हूं। मुझे तो खुद पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। मैं चाहूं
कुछ भी खरीद सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ और बस मैं ही हूँ सबसे बड़ा। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा है इंसान और इंसान की इंसानियत। पहले तो मैं कहीं पर भी बेवजह बेजरूरत खर्च हो जाता था, लेकिन अब जहां जरूरत बस वहीं खर्च होता हूँ। आजकल तो सेविंग में रहने लगा हूँ, क्योंकि आज मेरा घमंड टूट चुका है और मैं सच्चाई को पहचान गया हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं रास्ता हूँ और रास्ता देख रहा हूँ। लोगों की भीड़ का, मुझ पर चलने वाली हजारों गाड़ियों का, उनके शोर का, मेरे सामने होने वाले सच्चे झूठे झगड़ों का, उन खुली दुकानों का, खाने पीने के ठेले और चाय की टपरियों का, उन बेसहारों का जो मेरा सहारा लेते हैं, उन मुसाफिरों का जिन्हें मंजिल तक लेके जाता हूं। इन सबका रास्ता देख रहा हूं। बिल्कुल अकेला हूं, सुनसान हूं। मैं रास्ता हूं और रास्ता देख रहा हूं। अरे भाई, मैं भी तो राह देख रहा हूँ कि कब कोई आएगा और पंचिंग मशीन में अपनी उंगली डालकर अटेंडेंस लगवाएगा, वॉशरूम में जाएगा और फ्रेश होकर स्माइल के साथ अपने कलीग्स को हे हाय गुड मॉर्निंग ऐसा कहेगा। अपना अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए सब गुम हो जाएगा, कभी शाबाशी तो कभी अपनी सीनियर्स की डांट खाएगा, लंबे लंच ब्रेक में खाना शेयर करेगा और थोड़ा जो वक्त मिला उसमें गॉसिप करेगा। फिर से काला नीला लैपटॉप अपने टेबल पे खुल जाएगा, कागजों का आना जाना शुरू हो जाएगा। कभी मीटिंग, सेटिंग, डेटिंग का सिलसिला भी चलेगा और मैं यानी कि ऑफिस कब शुरू हो जाएगा। मुझे तो ट्रैक पे चलना अब बोरिंग हो जाता है, क्योंकि साइड में चलने वाली दूसरे ट्रेन के साथ रेस लगाने में अब मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि ये ऐसे जोर जोर से चिल्लाने वाला अब कोई नहीं है। प्लेटफॉर्म पे मेरे नाम की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन वो सुनकर मार धाड़ से चिल्लाते हुए चढ़ने वाला अब कोई नहीं है। ए आगे चलना, दिखता नहीं क्या? नया आया है बाप। ए तुम्हारे बैग आगे ले, 10 का 4 ले लो, 10 का 4 ले लो ले लो। ए लड़की, तेरे बाल मेरे आँख में जा रहे। ए हाथ नीचे कर, ए जाना, ए चल बे। ये सब अभी बंद है। अकेली आती हूँ, अकेली ही जाती हूँ, लेकिन हाँ मैं ट्रेन हूँ और सबसे मेन हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप लोग कब सुधरोगे? अपने आप को कब बदलोगे? अपने इतिहास को सिर्फ भूल जाने की बीमारी का इलाज करवा लो, ताकि फिर कभी ऐसी महामारी में दर बदर भटकने की नौबत ना आए। कितनी बार अलग अलग बीमारियों ने आपको डंक मारा है, उस वक्त मैंने कैसे तैसे आपको ठीक किया, आपको संभाला, तब आपकी संख्या भी तो कम थी। लेकिन अब लाखों करोड़ों में बढ़ रहे हो तुम लोग, और मेरी संख्या जितनी थी उतनी ही है। जगह ही नहीं बचती मेरे पास। आप ही बताओ, कितने हॉस्पिटल्स हैं? जितने थे उनमें से भी कुछ बंद कर दिए। जो है उनमें बेड्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नर्सेस की कमी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी। आज आपकी जिंदगी में इतना अंधेरा होने के बावजूद आप ब्लैक करते हो। अरे यार, क्या कर रहे हो आप लोग? मैं थक गया हूँ दिन रात काम करते करते, लोगों की हजारों परेशानियों से लड़ते लड़ते। अरे मैं आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए ही हूँ, लेकिन जरा सा मुझ पर ध्यान दो। सेहत है तो सब कुछ है, लेकिन जरा मेरे लिए बजट बढ़ा दो, ताकि भविष्य में कभी कोई बेमौत ना मर जाए। इसलिए अभी तो सुधर जाओ।
अपने ही भले के लिए जरा सा बदल जाओ। मैं युवा हूं, इस परिस्थिति के लिए शायद जरा सा जिम्मेदार भी हूं। चारों ओर से घिरा हुआ हूं, जान के खतरे से डरा हुआ हूं, भविष्य मिट जाने की खौफ से परेशान हूं। पर हां, हारा नहीं हूं, जीतने के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। पर हां, कभी डर जाऊंगा, कभी परेशान हो जाऊंगा, कभी रोऊंगा, लेकिन लड़ता रहूंगा जब तक जीत ना जाऊं। आप सब फिक्र ना करना, वो खुशहाली वापस आएगी, वो मंजर वापस आएगा। घनघोर अंधेरे से लड़कर वो उजाला फिर लहराएगा। अरे लॉकडाउन तो है ना यार, एक दिन वो भी चला जाएगा। ए भाई, लॉकडाउन चल रहा है भाई, लॉकडाउन चल रहा है भाई, लॉकडाउन चल रहा है भाई। लॉकडाउन तो आया है, एक न एक दिन जाएगा, हमारे ही साहस से कोरोना भाग जाएगा। आएगा आएगा, अच्छा टाइम आएगा जाएगा, ये बुरा टाइम जाएगा। मुंबई की लाइफलाइन शुरू हो जाएगी, बीती हुई खुशहाली वापस लौट आएगी। धक्के और बुक्के का मजा शुरू होगा, सुबह अपने ऑफिस और रात में अपने घर होगा। जाएंगे बच्चे स्कूल, अब ना कोई डर होगा। घर होगा, घर होगा, खुशी भरा घर होगा। यही सब कहती है मुंबई की पब्लिक, बाहर मत जा, कुछ इनसे तू सीख। भारत मेरा देश है, तू दिल पे अपने लिख। ओए भारत मेरा देश है, तू दिल पे अपने लिख। समझा क्या बोल रहे हैं? अरे लॉकडाउन चल रहा है भाई, लॉकडाउन चल रहा है भाई, लॉकडाउन चल रहा है भाई, लॉकडाउन चल रहा है भाई। Hi everyone, thank you so much for coming and showing your support to the students of the Salam Bombay Theatre Academy and me. They've been working so hard over this last month to create a wonderful production, and I truly hope all of you've enjoyed it. I personally loved watching the play, and I've loved working with each and every one of them over this past month. A special thanks to the team at the Salam Bombay Foundation, because without their efforts this entire production would not have been possible. I would really appreciate your contribution in helping me reach my goal to support the students. The link to donate will be at the end of this video and in the description box below. Thank you.